Hello everyone, a beautiful day to all of you. Today we have a special guest with all of us. Her name is Delna Rajesh. She is a hypnotherapist, psychotherapist, Reiki Grandmaster with 23 years of experience in Reiki and many other mind energy healing modalities. So there is so many things to explain about her. Let us know about her from her mouth. Welcome, Delna. Thank you so much, Rabani. Um, so just to briefly introduce myself, um, Yes. I'm Delna Rajesh. I'm a psychotherapist, hypnotherapist, numerologist, and I've been into the mind energy healing space for over 23 years now. My journey started back in 2001 when I was um initiated into Reiki. And as years passed by, I realized that only energy work may not be enough. I also went through a phase where I went through therapy myself in 2007. And I did realize that energy work in isolation or mindset work in isolation can only do so much. You can keep programming your mind, but if your chakras, your energy body may not be, as open, receptive, active, balanced, then it is going to take that much longer for you to heal. Not that it does not work, but it just takes a little longer. Similarly, you keep working on the chakras, but in the conscious mind, you're not working on your mindset at the same time. Again, it may take a little time for you to realize, even though the energy is ready and there is a complete energy shift, the mind also needs to be ready to accept, understand, release, let go certain concepts or break through certain patterns. So that is where I realized, after 13 years of a corporate career, when I took a break to be with my son. That was a time where I got a lot of time to self introspect, and I equipped myself with hardcore psychotherapy skills. I did my master's in psychotherapy, and I started specializing in different modalities. So today I teach over 22 modalities, and also I'm a healer, so I do a lot of healing, mindset, psychotherapy work. I'm also a hypnotherapist. So there are certain cases where we require regression. We require certain hypnotherapy techniques to go deeper into the subconscious and release the blockages or reprogram the mind. NLP tools and a few other similar techniques. And then I realized that only mind and energy may not also be the most maximized combination. साथ साथ में कभी कभी occult जो हम अपने karmic path से लेकर आते हैं, the numbers we are born with also hold a lot of information about our life path, our hidden potential, our struggles that are going to be there for us. So with that awareness of the hidden potential, the struggles, the life path, and how conquering your life path and understanding, learning those lessons can really help you heal faster, move forward faster in your life towards the life you desire. With that, I combined and I have put together a beautiful methodology called the uh, Kintsugi mastery technique. And that is what I do. I work with a lot of women. I help them through their uh, stress, anxiety, especially coming from toxic relationships and traumatic phases of life. And it's my mission to reach and touch over 1 million lives. So I invite you all to be part of this beautiful conversation. And yes, Shabani, we can. थैंक यू डेल्ला, आपने बहुत अच्छे से, पता नहीं कितना आपका नॉलेज है, उसको इतना सिंप्लीफाइड करके बताया, पर जितना आपने बताया उससे मुझे पता चला कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर ऑल ऑफ अस टू डू ऑन आवर सेल्व्स। तो खाली आपको बॉडी को बैलेंस करना है, बॉडी को फिट करना है, हम जैसे रोज में करते हैं ना, खाली खाना पीना, बच्चे ने क्या किया, घर कैसे चल रहा है, उसी में ही बहुत लोगों का टाइम लेकर निकल जाता है। पर Yes, आपने जैसे बताया कि आप बॉडी के साथ भी आपको माइंड को भी बैलेंस करना
है ना। आपने जैसे बताया कि अगर आपने एनर्जी को बैलेंस कर लिया, पर अगर आपका माइंडसेट बैलेंस नहीं है तो भी वो काम नहीं करता है। फिर उसके साथ आप बता रहे हो कि आपका कार्मिक भी कुछ है, उसको भी आपको बैलेंस करना है। और उसमें आपको तो बहुत कुछ पता है। पर आज ना डलना, मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, क्या इसमें हमारा प्योर इंटेंट करके कुछ, उसमें कुछ रोल प्ले करता है? हाँ, प्योर प्योर इंटेंट। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बिकॉज आई एम इनटू रेकी। तो रेकी में मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी बिग, गोल्ड मैनिफेस्टेशन लेवल 2 में खूब कराया जाता है, बिकॉज देयर इज द पावर सिंबल। एंड so a lot of people come and tell me, especially kai bar young girls, their early 20s, who are about to get married, or who are in a relationship and they've have gone through relationship breakdown. Ma'am, I want him back. Ma'am, I want this back. I want this. I want that. I want everything is good. It's nice to desire. हर किसी को, all of us must aim higher. We are in this beautiful materialistic world. So I'm not saying that हम सब कुछ त्याग के सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। हैविंग एस्पिरेशन इज ब्यूटीफुल, बट आपके इंटेंशन में अगर प्योरिटी है, इट हैज इट्स ओन ब्यूटीफुल पावर। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ यंग गर्ल सेज आई वांट दिस पर्सन बैक, this person is now seeing someone else, how do you know this person is actually really only meant for you? ओके। So pure intent वो होता है, when I say it is very essential, अगर हमें अपनी लाइफ आसान चाहिए, मतलब हाँ। एक होता है यू कैन अचीव ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं अचीव कर सकते हो। यू डू योर मैनिफेस्टेशन, यू डू योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू विल मैनिफेस्ट एनीथिंग, बट मैनिफेस्टिंग समथिंग फ्रॉम आवर स्मॉल ब्रेन, आवर स्मॉल ब्रेन, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हमारी बुद्धि लिमिटेड है, बट आई एम डूइंग अ रेफरेंशियल कनेक्ट टू द यूनिवर्सेस इनफाइनाइट विजडम। जो सृष्टि है और जो हमारा सोल कनेक्ट है, उसकी एक सर्टेन रिदम लय है, उसका एक सर्टेन पैटर्न है, एंड इट हैज ऑलरेडी, द यूनिवर्स हैज डिजाइन्ड अ पाथ फॉर अस। वी मे or may not be aware. How do you know that you don't have a better partner waiting for you? How do you know that when you get that particular person back, that relationship will be the most fulfilling relationship for you, और आगे आपको डिवोर्स या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं कह सकते। सो ये होता है, एक होता है हमारी बुद्धि, माई माइंड, यस। द पावर यस। ऑफ माई माइंड। नाउ ओके। ऑल दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब आता है इन द पावर ऑफ द माई माइंड की लिमिटेशन में। माइंड इज सो पावरफुल, हम उससे भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ। When I say power of pure intention, हाँ। जब हम अपने मन को शुद्ध रख के इनफाइनाइट यूनिवर्स के माइंड से वर्क करते हैं, ओके। means I bring my little wish to the universe with complete purity in my heart, with innocence in my heart, without fear, without adulteration, without any kind of negative malice towards any other. और जब मैं प्योर हार्ट से ये सोचूं कि वो हो जिसमें हम्म। सबका भला हो, मुझे ये ओके। वाला चाहिए, I want, I desire, I surrender my desire to the universe. But I'm also saying that while I surrender my desire to the universe, let the universe do it in a way which is beneficial for everyone, for the whole. सृष्टि के हिसाब से, जो यूनिवर्स के हिसाब से अलाइंड है, फ्रॉम द हायर डिवाइन माइंड, फ्रॉम द हायर कॉन्शियसनेस, इन अलाइनमेंट विद दैट, मे दिस हैपन फॉर मी, दैट इज प्योर इंटेंट। एंड जो भी आपकी इच्छा है, अगर आप अपना जीवन उस तरह से if you start living in a manner which is somewhere aligned to the universal force, then you stop going against the current. And when you हम्म। stop going against the current, life becomes a little effortless, क्योंकि जो आपको मिलना है वो तो वैसे भी मिलेगा ही, करेक्ट। और जो नहीं मिलना है वो तो वैसे भी नहीं आप मिलेगा। कंसिडर कर रहे हो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड प्योर इंटेंट।
Yes, there तो is a मुझे समझ में आया कि डिजायर आप पर्सनल लेवल में कर लेते हो, जब वो प्योर इंटेंशन बन जाता है देन यू ट्राई टू अलाइन विद द यूनिवर्सल पावर, और उसमें आप सबका भलाई भी देखते हो, राइट? yes. So tell me, why is having a pure intent essential in achieving personal and spiritual growth? Hmm. Uh, why it is essential to have pure intent? When you act from a space of pure intent, as I said, you're not going against the current anymore. You're going with Yes, the flow of the current. Okay. right. So when you go with the flow of the current, बहुत बार हम ऐसा होता है ना कि आपने गोल अचीव कर लिया, और आपने वो गोल हाँ। को अचीव करने के लिए इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि जब वो आपको चीज मिल जाती है, हम्म। हाथ खोल के देखो तो वो मायना ही नहीं रखती. हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, एक्चुअली होता है। Right? So in this process, what is happening? You're manifesting, but you हम्म। are draining out your energy so much in attaining that. हम्म। Who's the essence of joy ultimately? ओके। या। Okay. So now when you are working from pure intent, because हम्म। प्योर इंटेंट क्या होता है? प्योर इंटेंट में फियर नहीं है, प्योर इंटेंट में इनसिक्योरिटी नहीं है, प्योर इंटेंट में एक भाव होता है कि सबका भला. ओके। हम जैसे कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम. हाँ, Everybody is, all of us are a family. So द when वर्ल्ड इज अ फैमिली, यस। the world is a family, so आपके दुख में मैं सुखी कैसे रह सकती हूँ? नहीं, नहीं, नहीं रह सकते, वो तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अगर आप दुखी हो तो डेफिनेटली मुझे भी थोड़ा सा वैसे ही फील होता है। राइट. सो जब हम इस भाव में होते हैं तो हाँ। आसान हो जाता है. इवन इफ वी डोंट गेट समथिंग, पीपल हु आर इन द फ्लो एंड कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एंड अलाउ द डिवाइन पावर टू टेक चार्ज. हो सकता है मेरा काम नहीं हुआ, but these people, or naturally when you're in that state, you feel you are able to rejoice in another person's happiness also. ओके। मतलब मेरा काम हो ना हो, I will always have the ability to be happy for others also. ठीक है। तो व्हाट आर द की components that make the intent pure, as you told already, has told something, so what are the components? सबसे पहला कंपोनेंट होता है क्लैरिटी ऑफ माइंड. Okay. प्योर इंटेंट ऑलवेज बिगिंस विथ कंप्लीट क्लैरिटी. क्या चाहिए, क्यों चाहिए? ओके. ठीक अ है। लॉट ऑफ टाइम्स हमें जो चाहिए होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ प्योर, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ स्कैर्सिटी, दैट इज कमिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटी. हम्म। ओके. कभी कभी आप देखिए, आपने लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स के लिए इतनी मेहनत करी होगी, उनको अचीव भी किया होगा, एंड अल्टीमेटली यू वंडर कि मुझे चाहिए क्यों था. हम्म। समटाइम्स वी आर चेसिंग अ गोल दैट इज नॉट रियली आवर गोल ओनली. हाँ, तो बहुत बार होता है कि पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे फर्स्ट ही आना है, मुझे इतने परसेंटेज ही रखने हैं, इतने एज तक मुझे सेटल हो जाना है मेरे कैरियर में, इतने एज तक मैरिज हो जाना चाहिए। करेक्ट. बहुत सारे गोल्स हमारे वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हम सेट कर लेते हैं। तो आप करेक्ट. बोल रहे हैं कि मुझे सोसाइटी के अकॉर्डिंग सेट नहीं करना है, मुझे मेरे माइंड में मेरा क्लैरिटी रहना चाहिए कि मैं अगर कुछ डिजायर कर रही, वो मैं क्यों डिजायर कर रही हूँ। क्यों तो कर रहे? हाँ. दैट वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट विल ओके। क्लैरिटी, दैट इज द फर्स्ट. राइट। अब हाँ। when you are very clear that ये मेरा गोल यस। है, sometimes your goal is stemming from love, and if you feel that it is going to create pain, you may just हम्म। you may realize I don't want this actually. या। So वहीं पे knockout हो जाता है. What I'm trying to say is that that draining, that हाँ। that heaviness, that drain of energy does not happen. हम्म। The second one is detachment. ओके, ग्रेट। So I have a clear goal, I know my why, but हाँ। जब मैंने उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया उसका, हाँ। and हाँ। 100% I am acting towards my goal in the right direction. I'm putting all my efforts. Now, after I put all my efforts, I've done my 100%. उसके बाद I surrender it and I let it go. मेरा अटैचमेंट मेरे वर्क से है. हाँ। So I'm clear of my goal.
I am attached. I know my plan. I work towards my plan, and I did my 100%, 1000%, whatever I had to do in the right direction. Now my job is done. Okay. After my job is done, it's the universe's job to reward me in whatever way and however it has to bring things together for me and for the others in that who are connected. So the second step is surrender and detachment. Detachment is not detachment from action. Action में तो हमें पूरी तरह committed रहना है. But once you have completed your action, then you detach and say, I've done. मेरी इच्छा थी, प्योर इच्छा है. इस इच्छा से किसी और को कोई तकलीफ नहीं होगी. एंड उस पर मैंने पूरी तरह काम भी किया है. हाँ. अब मैं यूनिवर्स को सरेंडर कर रही हूँ. वाह, ब्यूटीफुल. और कुछ है इसमें? एंड द थर्ड इज, आपने सरेंडर कर दिया. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैम मैंने तो सरेंडर कर दिया है, मैंने तो सरेंडर कर हाँ. दिया. क्या? बट डीप इनसाइड देयर हार्ट से सरेंडर किया, लेकिन रिजल्ट आया कि नहीं, रिजल्ट आया कि नहीं, रिजल्ट आया कि नहीं. मतलब आपने सरेंडर नहीं किया है. हम्म. यू आर नॉट ओके इफ द वर्ड इज नॉट इन योर फेवर. ओके. So just saying I am detached and leaving it, some people may even be able to leave it knowing कि अच्छा मैंने डिटैच और ये बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स के साथ होता है. बिकॉज कि कई बार आप जब डिटैच हो जाते हो तो काम हो ही जाता है. नाउ एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, नो, सबकॉन्शियसली इन योर ब्रेन इज टेलिंग यू डिटैच करोगे तो काम हो जाएगा. सो एक्चुअली आर यू डिटैच नहीं, आप तो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, यू आर प्लेइंग. ओके. नाउ इन सच अ सिचुएशन, जब रिजल्ट नेगेटिव आए, हम्म. you must have the ability and the courage to accept, acknowledge, and move forward with it, knowing that universe will have a higher plan for you in the future. वाह, ब्यूटीफुल. आपने बहुत अच्छे से कहा. जैसे अभी मुझे समझ में आया कि मुझे क्लैरिटी भी रहना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए. सेकंड, मुझे डिटैचमेंट, जो बहुतों को मुश्किल होता है कि डिटैच कैसे हो जाएंगे अगर काम में इतना ध्यान देके, पूरा अपना टाइम देके, मेहनत देके सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली अटैचमेंट होता है कि रिजल्ट आता है या नहीं आता है. अगर आता है तो वो हमारे फेवर में आना चाहिए. वो हम मोस्टली अटैच कर लेते हैं कि हमारे फेवर में रिजल्ट तो आना चाहिए, किसी दूसरे पे नहीं. तो उसको भी हमें डिटैच करना है. और अब हमें हायर पर्पस के साथ भी अलाइन रहना है, राइट. तो उसको भी वो भागवत गीता में भी बताते हैं ना कि माँ फले कदाचन. तो आपको रिजल्ट के साथ कभी भी अटैचमेंट नहीं होना है, बस काम के ऊपर ही अटैचमेंट रखिए. आप मुझे ऐसा बताओ, हम ये कैसे अपना डेली लिविंग में कैसे हम अलाइन कर सकते हैं इंटेंशन को ट्रू पर्पस के साथ? हाउ इंटेंशन. कैन समवन अलाइन? या ओके. सबसे पहले इंटेंशन और पहले पर्पस. तो हमें समझना है कि जो हमारा ट्रू पर्पस है वो है क्या. हाँ. है. कई हाँ. बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ हीलर. मैं अगर कह रही हूँ मेरा ट्रू पर्पस हीलिंग है, हाँ. लेकिन मैं पूरा दिन कुछ और ही कर रही हूँ, माई फोकस इज ऑन समथिंग एल्स ओनली. ओके. या, आई अंडरस्टूड. विल आई बिकम अ हीलर? नो. ठीक है. सो फॉर a lot of times we say, and I see this with a lot of women who are into toxic relationships. They say, I want to attract my soulmate, I want to attract my soulmate, I don't want to get into. Lekin the loneliness is so high. The moment they see another relationship where they are, which is something that is filling that empty space even a little bit, they are I will not say tempted, but they somehow tend to slip into these other toxic situations that in their heart they know it's not the correct, it is, they know it's not the soulmate, they know ये लड़का शादी नहीं करेगा, they know this will definitely not work out, they know the person may be toxic, the person may be cheating, the person is flirting, whatever it is. But हाँ. तो आप कह रहे हो कि I want this and I'm working towards this, but your action is not aligned there. It is like saying I want to lose 10 kgs and मैं bucket भर के आइसक्रीम खा लूं. आज ही खा लेती हूँ, किया जाता है. बहुत बार हम ऐसा कर लेते हैं ना. या. Yes. करेक्ट. So a lot of times women, even in relationships, I see, sometimes young college, college kids saying कि मैम ये तो यस. है, it's okay, अभी तो शादी बहुत दूर है, I'm not even 22.
but somewhere they're saying, I want to work, I want to attract, I want to attract, I want to attract, and then we are working on a certain plan. But हम्म, जैसे ये खत्म हो जाएगी ना ये तो वैसे भी खत्म होने वाली है मैम, ये तो वैसे हम्म, भी खत्म हो जाएगा. Just till my exams get over, then I will cut off from this person. Now, when you ओके, are doing this in any area of your life, whether it is your work life, whether it is your personal life, whether it is your health, हाँ, आज कर लेते हैं फिर कुछ और, या, then it is your action is not aligned. And why this happens is because कभी कभी जो हम डिजायर करते हैं, जो जो हमारा एक्चुअल रियल रियल गोल है, वो हमें हम्म, वो इतना बड़ा लगता है और इतना अनअचीवेबल लगता है. एंड दैट पेशेंस एंड करेज टू वेट इट आउट till that happens may not be so strong. It is difficult. It's not a very easy journey. So राइट, in that case, I would say we need to break down that big goal into smaller parts. So for हम्म, example, goal of attracting a soulmate, if it is so big, then उसको आप break down करिए कि उसके लिए मुझे अपने आप पे क्या क्या वर्क करना है. So I can say step one, I will learn self love. अब self love भी बहुत बड़ी बात है. What is self बहुत love? बहुत, या, Right? So you can start saying that I will start with self respect. अच्छा, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ा वर्ड है. व्हाट डज हाँ, इट मीन टू यू? यू कैन से आई विल स्टार्ट विथ सेटिंग बाउंड्रीज. ओके, बाउंड्रीज भी बहुत बड़ा वर्ड है. कहाँ पे हाँ, आप कर पाओगे? सो देन यू विल से आई विल स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज विथ 1 2 3 people. आई एम गोइंग टू जस्ट वर्क फॉर दिस 1 month on working on this relationship and protecting myself from getting uh, completely derailed. So I will draw boundaries only in 1 2 and 3 places. And when I reach my success point, I'm going to celebrate it हम्म, and motivate myself. तो जो हमारा लाइफ पर्पस है, उसी से अलाइंड माइक्रो गोल्स रखते हुए, उसी से अलाइंड डेली गोल्स रखते हुए, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन करके मेजर करते हुए. सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द बेस्ट टूल. आप उसको जर्नलिंग के थ्रू करो, आप उसको मेडिटेशन के थ्रू करो, आप उसको माइंडफुलनेस के थ्रू करो, आप जिस तरह से उसको करना चाहते हो. अल्टीमेटली ऑल दीज टेक्निक्स, ग्रेटिट्यूड के थ्रू करो. ऑल दीज टेक्निक्स आर व्हाट दे आर? सेल्फ रिफ्लेक्शन टेक्निक्स. सो व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन योरसेल्फ, मैं कहाँ पहुंची, हम्म, then you will not lose track of your goal. Then या, your आपने will be. बहुत बड़ी बात कही एक्चुअली, कि आपको आपका ट्रू पर्पस भी जानना है और उसी के अलाइंड आपको अपने गोल सेट करने हैं. अगर आप बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो, आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, तो आपको उसको माइक्रो गोल्स में डिवाइड करना है. फिर उसी में से वन स्टेप एट ए टाइम करके अपना प्रोग्रेस आप ले सकते हो. बहुत बहुत डीप बात कही है आपने. सो ऑडियंस whoever is watching this video, you can take note down of all these points, बिकॉज अभी मैम जो भी शेयर कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स एक एक करके वो बहुत पावरफुल है. अगर एक ही के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे वो भी बहुत डेप्थ में होता है. करेक्ट, करेक्ट. तो आप मुझे बताओ, कोई भी रिलेशनशिप में, कैरियर में या फिर पर्सनल गोल में Mhm. हम डे टू डे लाइफ में क्या स्टेप्स ले सकते हैं? अभी आपने भी बहुत कुछ बता दिया है, जैसे मिनी गोल्स आप कर सकते हो, आप डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस कर सकते हो. और कुछ करना चाहिए क्या उसके साथ? हम्म. अ, अगर हम इस प्योरिटी के पाथ पे हैं, व्हाट इज प्योरिटी? प्योरिटी स्टार्ट्स विथ ऑनेस्टी. हम्म, तो करेक्ट. सबसे पहले हम किससे ऑनेस्ट होंगे? खुद के साथ मोस्टली. राइट. हाँ, honesty with yourself, and then honesty with the people who are around you, the stakeholders wherever. If you start, अगर हम इसके लिए थोड़ा सा माइंडफुल हो जाए, हाँ, the more you are honest to yourself and the more you keep reflecting and maintaining this alignment of honesty and authenticity. honesty होती है खुद समझना, फिर authentic होना होता है मैं जो बोल रही हूँ मेरे बोलने में और करने में फर्क नहीं हो. ओ, ओके, ओके. ओके, फॉर हाँ, एग्जाम्पल हम करते हैं ना, लाइक दिस, आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम लुकिंग एट माई फोन. हाँ, आई एम विथ हाँ, यू, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, आई एम नॉट विथ यू. नो, यस, सो करेक्ट. ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी दे गो टुगेदर. खुद हम्म, से भी सच बोलना, सामने वाले से भी सच बोलना, और जो बोला वो करके दिखाना. ओके. तो अगर हम ये छोटी छोटी बात, और अगर नहीं हो रहा है ना, देन बी ऑनेस्ट एंड से आई एम नॉट रेडी येट बट आई विल डू इट. हम्म,
बिकॉज इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, आप खुद की इज्जत नहीं कर सकते. You will not be able to respect yourself till you speak the truth to yourself. Because एक अंदर से आवाज आती है कि हाँ, आप तो सिर्फ कह रहे हो, करोगे तो कुछ और ही, ओह, झूठे हो. या, सो अगर खुद के कॉन्शियंस के सामने हम झूठे पड़ हाँ। जाएं, हाउ विल वी मैनिफेस्ट? तो आप मुझे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी बता चुके हो आप, कि क्लैरिटी भी चाहिए, आपको पर्पस भी चाहिए, फिर पर्पस के साथ नॉन डिटैचमेंट में आप रहो, यस. वो एक चाहिए। अभी आपने और उसके साथ बताया कि ऑनेस्ट भी रहना है, और वो शुरू होता है आपके खुद के साथ। यस. तो आप मुझे, हाँ, या बताओ तब। ऑनेस्टी, थोड़ा सा और माइंडफुलनेस, जिसके साथ आप अपनी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखें. हम्म। एंड जो लोग और ये कब बहुत टफ होता है करना, व्हेन पीपल आर वेरी डिप्रेस्ड, कोई बहुत ट्रोमैटिक इवेंट होती है, हाँ, स्पेशली डिसीट, बिटरनेस जब बहुत आ जाती है रिश्तों में, तो हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता है ऑथेंटिक रह के ऑनेस्ट रहना, टू बी ऑन दैट पाथ. मतलब हम चाहते तो हैं कि हम वो हाँ, करें, तो हम बहुत हाँ, बहुत बार हम बोलते हैं हाँ मैंने माफ किया मैम, हाँ मैंने माफ कर दिया मैंने. नहीं बट होता है। हाँ, या। इट इज डिफिकल्ट. सो धीरे 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 बीइंग ऑनेस्ट, ऑथेंटिक एंड एम्ब्रेसिंग दैट फॉरगिवनेस. क्योंकि जब हम्म। तक आप उसको, उस घाव को, उस चीज को धीरे धीरे करके फॉरगिव नहीं कर पाओगे, till you हम्म। don't embrace forgiveness. And even if you understand energy, when you don't forgive someone, I tell people you must be really loving this person ना, क्योंकि आप ओके। उससे इतना प्यार करते हो, आप उसको सेपरेट ही नहीं, यू डोंट वांट टू सेट देम फ्री, यू वांट टू बी अटैच्ड विद दैट फीलिंग, दैट थॉट. छोड़ना ही नहीं है आपको, बहुत प्यार है. ओके। बिकॉज या, हम कार्मिकली क्या कर रहे हैं, हम उस इंसान से और ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे जिसके हैं. ऊपर ज्यादा गुस्सा है, जिसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, हमें लग रहा है कि हमें उसके साथ अटैच नहीं होना है, पर उल्टा हो जाता है ना। हम हमेशा सोचते ही भी उसके बारे में है, बोलते भी उसके बारे में है। हाँ, या। every time you think and there is this seed of unforgiveness, हम्म। resentment, that means you are connected to the soul very deeply. या। जब आप मुट्ठी खोल के उसको जाने देंगे, हाँ। और आप उसको लेट गो करेंगे, और आप खुद को भी माफ करेंगे, उनको भी माफ करेंगे, उनसे भी माफी लेंगे, और खुद से भी उनको माफ करेगा, मतलब दोनों तरफ से जब फॉरगिवनेस होगी, तब आप ओके। then you are really letting that person go. Otherwise you are holding that person's energy very close to you. हम्म। तो आप भी कैसे हील होगे? ना वो हील हो सकते हैं, ना आप हील हो सकते हो. व्हाट इज द फन, व्हाट इज द पॉइंट इन दैट? कुछ भी। देन उस सब के बीच में आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे अपना ट्रू गोल? या, वेरी पावरफुल। डेल्ला में हमने हंसते हंसते पता नहीं कितने पावरफुल टेक्निक अभी बता दिए। जर्नलिंग करना है, आपको फॉरगिव करना है, और आपको खुद के साथ ऑथेंटिक रहना है, बाय बीइंग ऑनेस्ट। आप अभी थोड़ा सा ऐसे बताओ कि प्योर इंटेंट कोई रोल प्ले करता है क्या मैनिफेस्टेशन में? आर देयर एनी स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट सपोर्ट दिस? यस. एज आई सेड, एक होती है छोटी बुद्धि, हम स्पिरिचुअलिटी में ऐसे बोलते हैं छोटा मन, और हायर कॉन्शियसनेस. ओके. एक होता है मेरे मन की बात, एक होता है उनके मन की बात. हाँ, हाँ। कौन सी, हु लव्स मी मोर, मी और गॉड? गॉड। हु विल हैव अ बेटर प्लान फॉर मी और गॉड? डेफिनेटली गॉड विल हैव, सो बिकॉज आई कैन सी द हायर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं अपने मन से कर रही हूँ, हाँ। प्योर इंटेंशन मैं डिवाइन विजडम से कर रही हूँ. Now, when ओह। I approach the law of attraction, and when I do this law of attraction work with हाँ। alignment with a pure intention, फिर वो कितना पावरफुल हो सकता है. वंडरफुल। या, रियली वंडरफुल। तो मुझे अभी जो भी कुछ करना है, तो मैं अपने डिजायर को पहला तो है प्योर इंटेंशन देके अलाइनमेंट में रहना है, कि यूनिवर्स के साथ में अलाइंड हो जाऊं, तभी जाके मेरा मैनिफेस्टेशन काम करेगा, राइट?
So, what is pure intent in love? In love, loving someone not for what they can do for you, not for how they can love you back, not for what they can give you, but because you are feeling pure love. Okay. I love you for the sake of loving you. I love you uh, because I feel love for you. आप हम्म उसको रेसिप्रोकेट करो या ना करो, हम्म जरूरी नहीं है कि मुझे, मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मुझे आप ही से प्यार मिलना चाहिए. तो किसे एक्सपेक्ट करें? My job is to love. ओके. If I'm in this relationship हम्म and I'm 100% honest, I am loving you with 100% purity, मुझे कहीं ना हम्म. कहीं से प्यार तो मिल ही जाएगा. ओह. We ओके. don't have to treat, treating love, then it is not love only. No, it's barter system. I pamper you, you pamper. I speak nicely to you, you speak nicely to me. That is not love. Oh, okay. Then you are giving a new concept of love actually. I can say हम that. हम क्योंकि अपने हम जिससे प्यार करते हैं उसी से एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन हो जाता है. राइट. अपने अपने स्पाउस से, अपने बच्चों तक से. आई हैव सीन सो हाँ. मेनी पेरेंट्स एंड आई सी यंग कपल्स कमिंग एंड सेइंग कि पेरेंट्स से इतना प्रेशर आता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, ये तुमने ये किया. नाउ आपने उसको बहुत प्योर प्योर भाव से किया है, बट द मोमेंट हम्म. यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, वो करप्ट हो जाता है. ओह. ओके. ट्रस्ट दैट इफ यू आर लविंग विथ प्योरिटी, आपको कहीं ना कहीं से प्यार मिल ही जाएगा. एंड रियली वो कहीं से भी हो सकता है. वी अच्छा. मेजर लव इन वेरी वेरी वेरी, हम जो ना कॉर्पोरेट उसमें आ गए हैं ना, तो हम हम्म. इस तरह उसको तोल मोल करके मेजर करते हैं. यू टेल मी, आपके यहाँ मेड आती है, कोई हेल्प आती है सपोर्ट के लिए? हाँ. वो रोज आती है, इतने प्यार से घंटी बजाती है, सुंदर सा हाँ. स्माइल दे के आती है, प्यार से आपके लिए काम करती है. आप हाँ. बीमार होते तो आपके लिए चार काम एक्स्ट्रा कर देती है. हाँ. शी नॉट लविंग यू? हाँ. हाँ. प्यार करती है. डेफिनेटली. ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हमें हाँ. बहुत बहुत अलग तरीकों से बहुत सारा प्यार दे रहे होते हैं. हाँ, वैसे अगर आप बोलेंगे तो यस आई कैन आइडेंटिफाई कि बिना मांगे भी बहुत जगह पे हेल्प मिल जाती है. और बहुत जगह पे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं. कहीं पे कुछ गिफ्ट आ गया, कुछ अफेक्शन, कुछ ना कुछ मिल जाता है. पर हम मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने यहाँ पे मैंने अपना टाइम दिया, इफर्ट दिया, और मैं इतना तुम्हारे लिए कर रही हूँ, क्या मैं बदले में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? वो वाली सोच आ जाती है. अगर आपको इतने से देख प्यार रहा के लिए है. इतना सारा काम करना पड़ रहा है, और आप उस होप में काम कर रहे हो इतना सारा कि मुझे थोड़ा सा, देन यू आर डूइंग अ जॉब, माय डियर. ओह. ओके. वाह. ग्रेट. यू आर ग्रेट वर्किंग वन. हार्ड टू गेट दैट लव, नो? यस. व्हाट इज दैट? मैं इतना मेहनत करूंगी तो तुम मुझे इतना प्यार दो, मैं तुम्हें इतनी सारी चीजों में सेटिस्फाई करूंगी, फिर रिवॉर्ड में मुझे ये चाहिए. आई एम डूइंग माई जॉब, यू प्रमोट मी. हाँ, आप मुझे डलना बताओ. सपोज मैं घर में सबके लिए खाना बना रही हूँ, क्या मैं इतना भी एक्सपेक्ट ना करूँ कि मुझे प्रेस मिले? हाँ, क्वेश्चन ये है कि प्रेज किसको करना चाहिए? हमें खुद से चाहिए या हमें सामने वाले से सुनना है? या खुद से भी चाहिए. यस. बिकॉज इफ यू नो, एंड हमें सामने से एक्नॉलेजमेंट की जरूरत. आप देखिए, जब आप जैसे कोई भी एग्जाम देती है ना, हाँ. हाँ. if you have done very well and you know your subject very well, do you need to tell your teacher to tell you, श्रबानी तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, हाँ तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो? जरूरत है क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं. वो मुझे पता है कि यस आई हैव डन माय जॉब प्रॉपरली. यू हैव, और अभी जो भी रिजल्ट आएंगे अच्छे से आएंगे. राइट? सो सेम हाँ. थिंग व्हेन वी आर इन आवर लाइफ, और when especially lot of young mothers come and they feel so हम्म. inadequate because दुनिया वाले, आप कितनी ही अच्छे माँ हो, आपको कुछ हम्म. तो जरूर ही बोलेंगे, राइट? हम्म. एंड दे आर वेटिंग, द वुमन इज वेटिंग कि कब मुझे कोई बोले कि तुम एक अच्छी बीवी हो, तुम एक अच्छी माँ हो, तुम एक अच्छी वाइफ, तुम एक अच्छी बेटी हो, बहू हो. ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज, डू यू नॉट नो वेदर यू आर गुड इनफ? या. Do वाओ. you not know whether you are lovable? Do you not know whether you cooked and you did a great job?
यस यस यस। तो वो खालीपन कहाँ से आ रहा है? Why do you need someone else to tell you? हम्म। If I am love and I'm giving love, then my job is to give you love. मैंने अपना 100% किया। आप समझ पा रहे हो तो समझो, या आप नहीं ब्यूटीफुल। समझ पा रहे हो, इट्स ओके। या I will not change. वाह, वंडरफुल। तो ये एक्चुअली मैसेज है, जो भी लेडीज अभी ये वाला देख रहे हैं, सबके लिए ये मैसेज है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ करते हैं और रिटर्न में एक्सपेक्टेशन भी करते रहते हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता तो खुद को ब्लेम करके फिर से दुखी भी रहते हैं। तो आपको वो सब कुछ चिंता छोड़ना है, जैसे डेल्ला मैम ने अभी बताया। आप बस अपने काम के ऊपर फोकस करो, अच्छे से करो। फिर उसके बाद कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो। और आप जो भी लव खुद को देते हो वो आपको कोई भी सोर्स से मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि कहाँ पे आपने दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसी सोर्स से ही मुझे चाहिए। अगर उधर से नहीं मिल रहा है, देन आई विल बी सैड, आई विल बी एंग्री, और मुझे लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो वो वाली सोच को एक्चुअली रिप्लेस करना है, बहुत पावरफुल है डिल्ला मैम। सो व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स पीपल फेस while trying to cultivate pure intent? Can you just explain? You have already explained, I think, so Yes. many things. One of But the things is, as I said, forgiveness. ठीक है। hmm, जब हम बिटरनेस के साथ कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक बैटल हमारे अंदर भी चल रही है। yeah. अब अंदर हम अगर बैटल अपनी ही जंग लड़ रहे हैं और ऑलरेडी Hmm, वुंडेड हैं, तो हम hmm, बाहर कैसे कोई नई जंग जीत सकते? correct. दैट इज वन थिंग। देन अनदर थिंग इज, एक और जंग होती है हमारी इंटरनल, फियर ऑफ फेलियर की। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो मिली नहीं, नहीं वो लोग तो कितने अच्छे कितने हैं। नाउ Hmm, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ वेरी वेरी लो सेल्फ वर्थ। wow. एंड दिस कैन हैपन। कई बार हम खुद को उस सिचुएशन में डाल देते हैं, कई बार सोसाइटी हमारी बहुत हेल्प करती है। Hmm, सोसाइटी हमें बोल बोल के लेबल लगा लगा के एक हमारे लिए एक नई हद सेट करती है, और हर बार एक नई हद होती है। बिल्कुल करेक्ट। So this battle, internal battle of understanding that I am limitless, हम्म। this internal battle of the fear of failing, the fear of disappointment, the fear of having to work very hard. कभी कभी हमें हार्डवर्क से भी डर लगता है, हम्म। क्योंकि एज आई सेड, कभी कभी हम ऐसे ऐसे चीजों में इतना ज्यादा एफर्ट डालते हैं जो हमारे लिए है ही नहीं, और वो कर करके हम इतने ड्रेन आउट हो गए हैं, इतने थक गए हैं, दैट यू डोंट, यू आर इवन स्कैर्ड ऑफ वर्किंग। एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कम फॉर हीलिंग, इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू हील और दे कांट डू, बट उनको even the thought of doing so much work, because healing is also work, you have to work, you're working, you're facing all the inner battles। आप अपने थेरेपिस्ट के साथ बहुत कुछ डिस्कस करते हो, एंड देयर आर सो मेनी अनप्लेजेंट थिंग्स जो बाहर आती है। इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी, यू नो, वाह मैं आ गई और बॉन्ड घुमा दिया और मैं हील हो गई, ऐसे तो नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। सो बहुत सारे लोग अंदर से इतने डरे होते हैं, दे आर स्कैर्ड ऑफ दैट वर्क, द इमोशनल हार्ड वर्क, द मेंटल हार्ड वर्क दैट दे नीड टू डू, द बैरियर्स दे नीड टू ब्रेक एंड क्रॉस टू बी एबल टू अचीव दैट गोल, चाहे वो हीलिंग का गोल हो, रिलेशनशिप का गोल हो, करियर का। हम्म। सो फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ हार्ड वर्क ओके। एंड बिटरनेस और लैक ऑफ फॉरगिवनेस, अच्छा। फिर एक तो अमेजिंग। ये सारे बैरियर्स को एक्चुअली हमें दूर करने हैं खुद हाँ। से। कि ये सारे अगर निकल जाएंगे, देन ओनली वी कैन कल्टिवेट प्योर इंटेंट इन एवरी वर्क वी डू। यस। और अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो, प्लीज सी अ थेरेपिस्ट हु कैन हेल्प यू डू दैट। इट्स अ वेरी वंडरफुल मैसेज यू हैव ऑलरेडी गिवन। कि अगर हम खुद से नहीं कर सकते, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम खुद से ही सब कुछ कर लेंगे। हम खुद से ही खुद को जज कर लेंगे, क्योंकि हम दूसरों को जज करना आसान होता है, पर खुद को देखना, खुद का वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे मैं अटक रही हूँ, कहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है, कहाँ पे मुझे फियर आ रहा है, कहाँ पे क्यों मैं इतना अटैच्ड हो जाती हूँ रिजल्ट के लिए। तो वो सारे के लिए अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, इट इज ओके टू हैव द हेल्प ऑफ ए थेरेपिस्ट और ए कोच।
Yes, जो and हम नहीं करते हैं यूजुअली। हम बस बॉडी के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पर आपका माइंड जो है वो अपने बॉडी के साथ कनेक्टेड है। और हम जो भी कुछ चाहते हैं, हमारा माइंड ही वो सीपीयू है जो हमारे पूरे सिस्टम को रन करने के लिए हेल्प करता है। वेरी ब्यूटीफुल सेड चंदा मैम। absolutely. सो इज देयर एनी मैसेज यू वांट टू लीव फॉर योर ऑडियंस एंड विद द पावर ऑफ प्योर इंटेंट, व्हाट इट शुड बी? Uh, Pure intent, connecting to the divine, being in alignment is a beautiful superpower, I will say. अगर आपने आज तक कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, आई नो देर इज फियर, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक व्हाट इफ दे आई विल गेट अ नेगेटिव रिजल्ट, मेरे मन का नहीं हुआ। तो यू नो, वन ऑफ माय मेंटर्स यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, अपने मन का हुआ तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है, वंडरफुल। right? So when we go into pure intent with that bhav, when you act from a place of love, when you're your honest, authentic self, when you walk in with that fearless trust in the universe, ki, knowing that universe will do whatever is best for me, whatever is best for others, you just see how your relationships transform, how your goals just manifest, and कभी कभी आपके गोल से कई बड़ा गोल मैनिफेस्ट हो जाएगा जो आप शायद जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। सो आई वुड से बिगिन विद ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस एंड its will and its ways, and don't let your ego come in the way. Just trust and be with the process, you will find your way. Wonderful, wonderful, actually, Della. Whatever you have explained, I think it will help everyone to cultivate that mindset and to have that detachment, because गीता भी यही कहता है कि आपको वही करना है जो Yes. यूनिवर्स के हिसाब से है, जो भगवान के हिसाब से सही है। आपको आपका कर्म अपने लिए नहीं करना है ना? और उसका रिजल्ट भी आपको, रिजल्ट के साथ अटैच्ड नहीं रहना है। जो सबके लिए अच्छा है उसी के लिए सोच रख के आपको करना है, और उसमें आपका ऑटोमेटिकली आपके डिजायर फुलफिल हो जाएंगे। अगर आप सबकी अच्छाई के लिए बोल रहे हो, थोड़ी ना आप बुरे में रहोगे और सब अच्छे हो जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। So thank you so much. I think this podcast is going to be very powerful and helping towards the audience, whoever is watching this. Thank you so much, ma'am. Thank you for connecting. Thank you, Shravani. Thank you for having Thank, me. thank you.